while Gaza bleeds, the heart-wrenching cries of its innocent women and children echo through these halls. Israel must be held accountable for its war crimes against humanity. Creation of an Arab Islamic task force to adopt effective measures to ward off Israeli expansionist designs. We reiterate the OIC's call to suspend Israel's membership of the United Nations. اقوام متحدہ میں اسرائیل کی رکنیت فوری معطل کی جائے. جنگی جرائم پر اسرائیل کو کٹہرے میں لانا ہوگا. اسرائیل جارحانہ عزائم کو روکنے کے لیے فوری عرب اسلامک ٹاسک فورس تشکیل دی جائے. اسرائیل نے جارحیت کے ذریعے امن کی کوششوں کو شدید دھچکا پہنچایا. اس جارحیت کے بعد سوال ہے کہ اسرائیل نے مذاکرات کا ڈھونگ کیوں رچایا. اسرائیل نے ہمارے برادر ملک قطر کی خود مختاری اور سلامتی کی خلاف ورزی کی. پاکستان قطر کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا دوحہ میں عرب اسلامی ملکوں کے ہنگامی اجلاس سے دبنگ خطاب. Above all, Excellencies, we must achieve a just, comprehensive and lasting two-state solution with creation of an independent state of Palestine with pre-1967 borders and Al-Quds Al-Sharif as its capital. غزہ میں انسانیت سسک رہی ہے. غزہ میں آبادی کو فوری اور ہنگامی بنیادوں پر امداد کی فراہمی کا مطالبہ کرتے ہیں. 1967 کی سرحدوں کے مطابق آزاد فلسطینی ریاست کا قیام چاہتے ہیں. اسرائیل فوری غیر مشروط اور مستقل جنگ بندی کرے. امدادی کارکنوں، طبی ٹیموں، صحافیوں اور اقوام متحدہ کے عملے کا تحفظ یقینی بنایا جائے. ہم نے اجتماعی دانش سے اقدامات نہ کیے تو تاریخ معاف نہیں کرے گی. وزیر اعظم شہباز شریف کی اپنے خطاب میں پاکستانیوں کے جذبات کی بھرپور ترجمانی. دوحہ میں عرب اسلامی ملکوں کے ہنگامی اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی عالمی رہنماؤں سے پرتپاک ملاقاتیں. وزیر اعظم سے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی، ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان، تاجک صدر امام علی رحمان، مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی اور ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم نے پرجوش انداز میں ملاقات کی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان خوشگوار جملوں کا تبادلہ. فلسطین کے صدر محمود عباس سے باہمی احترام کے طور پر بغل گیر ہوئے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی دوحہ میں اہم ملاقات. اسرائیلی جارحیت کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال. اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت. وزیر اعظم کی مسلم امہ کو متحد کرنے میں سعودی ولی عہد کے دانشمندانہ قیادت کی تعریف. اسرائیلی جارحیت مشرق وسطی میں امن کی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہے. دوحہ اجلاس نے دنیا کو اہم پیغام دیا ہے. وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد کو پاکستان کی ہر ممکن سفارتی حمایت کی یقین دہانی. وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ ریاض کے منتظر ہیں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان. ملاقات میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار بھی موجود. قطر پر اسرائیلی جارحیت. دوحہ میں عرب اسلامی ملکوں کے سربراہوں کا ہنگامی اجلاس. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی اجلاس میں شرکت. اجلاس میں 50 سے زیادہ OIC رکن ملکوں کے سربراہ اور اعلیٰ حکام شریک. اجلاس میں شریک اسلامی ملکوں کے سربراہوں کا گروپ فوٹو. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو گروپ فوٹو میں مرکزی اہمیت. اسرائیل نے قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کی. قطر نے ثالث کے طور پر خطے میں امن کے لیے مخلصانہ کوششیں کی. اسرائیل نے مذاکراتی عمل سبوتاژ کیا. یرغمالیوں کی پرامن رہائی کے تمام اسرائیلی دعوے جھوٹے ہیں. گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا عالمی امن کے لیے شدید خطرہ ہے. مشرق وسطی میں امن کے لیے مسئلہ فلسطین حل کرنا ہوگا. پر امید ہوں کہ اجلاس میں صورتحال پر ٹھوس اقدامات کیے جائیں گے. امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا خطاب.
اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم مشرق وسطی اور عالمی امن کے لیے شدید خطرہ ہیں۔ اسرائیل سمجھتا ہے کہ اسے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ غزہ میں نہتے فلسطینیوں کی نسل کشی کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے۔ کھلی جارحیت اور جرائم پر صہیونی حکومت کو رعایت نہیں دی جا سکتی۔ مسلمان ملکوں کو اپنی صفوں میں اتحاد کے ذریعے آگے بڑھنا ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان۔ قطر پر اسرائیلی جارحیت تمام عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ اسرائیلی ہٹ دھرمی سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کے سامنے کوئی اصول اور کوئی قانون نہیں ہے۔ تاریخ جارحیت کے حامیوں کو بطور مجرم یاد رکھے گی۔ قابل صہیونی ریاست کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم سب کو اکٹھے ہونا ہوگا۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا دوحہ میں خطاب۔ اسرائیل کھلی دہشت گردی پر اترایا ہے۔ اسرائیلی جارحانہ اقدامات پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ قطر کی سلامتی کو اپنی سلامتی سمجھتے ہیں۔ اسرائیلی جارحیت روکنے کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ مشرق وسطی مزید کسی جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ فلسطینیوں کی نسل کشی روکنا اور فوری امداد کی فراہمی ناگزیر ہے۔ 1967 کی سرحدوں کے مطابق فلسطینی ریاست کا قیام ہی امن کا راستہ ہے۔ فلسطین، عراق، مصر، اردن، کویت، صومالیہ، مالدیپ اور تاجکستان سمیت متعدد سربراہوں کا اجلاس سے خطاب۔ قطر پر اسرائیلی حملے سے ثابت ہو گیا کہ اسرائیل کے لیے امن کی کوئی اہمیت نہیں۔ اسرائیل کی خطے کے ملکوں پر جارحیت انتہائی تشویشناک ہے۔ صہیونی ریاست نے بربریت اور مظالم کی تمام حدیں پار کر لی ہیں۔ عالمی برادری کو جنگی جرائم پر اسرائیل کی جواب دہی کرنا ہوگی۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ فلسطین کا حل ناگزیر ہے۔ OIC کے سیکرٹری جنرل اور عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل کا اجلاس سے خطاب۔ صدر آصف علی زرداری کی شنگھائی الیکٹرک کے چیئرمین وو لی سے ملاقات۔ تھر میں کوئلہ گیسیفیکیشن پلانٹ کے قیام کے لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط۔ منصوبے سے توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ زرعی شعبے کو فائدہ پہنچے گا۔ شنگھائی الیکٹرک کو پاکستان کی بجلی ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن نظام میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار کی ترکی کی وزیر خارجہ سے ملاقات۔ قطر اور دیگر ملکوں پر اسرائیلی حملوں کی مذمت۔ فلسطینی عوام کی جدوجہد کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ۔ مسلم امہ کے اجتماعی کردار کے لیے OIC اور عرب لیگ کے کردار پر زور۔ دونوں رہنماؤں کا عرب اسلامی سربراہی اجلاس کے انعقاد کا خیر مقدم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سیلاب سے شدید متاثرہ مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور کا دورہ۔ ریسکیو اور ریلیف آپریشن پر بریفنگ۔ گورنمنٹ ہائی اسکول علی پور میں قائم فلڈ ریلیف کیمپ کا بھی دورہ۔ سیلاب متاثرین سے دستیاب سہولتوں کے بارے میں دریافت کیا۔ سیلاب متاثرین کی بحالی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، مریم نواز۔ پنجاب کے لیے 1500 بسز آرڈر کی ہیں، جس میں سے 200 جو ہیں وہ آ چکی ہیں، اور پہلی کھیپ اس کی میں پورے پنجاب میں نے اگر کسی شہر کا انتخاب کیا ہے اس کا آغاز کرنے کے لیے تو وہ میاں والی ہے۔ اگر میاں والی کی پہلی پبلک ٹرانسپورٹ سٹیٹ آف دی آرٹ الیکٹرک بسز کوئی لے کر آیا ہے میاں والی، تو وہ نواز شریف کی بیٹی لے کے آئی ہے، الحمدللہ۔ پنجاب میں ٹرانسپورٹ نظام جدید دور میں داخل۔ لاہور میں الیکٹرک وہیکل بس سروس پائلٹ منصوبے کے بعد میاں والی میں بھی الیکٹرو بس کا آغاز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ صوبے بھر میں جاری ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل سے ترقی اور خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا سیلاب متاثرین کے لیے مالی امداد کا بھی اعلان۔ پاکستان چین دوستی کی دنیا بھر میں کہیں کوئی مثال نہیں ملتی۔ پاکستان اور چین نے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا، تمام فورمز پر یکساں موقف اپنایا۔ سی پیک سے ترقی اور خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوا۔ دونوں ملکوں کے درمیان عظیم دوستی کو آنے والی نسلوں تک پہنچائیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا فضان یونیورسٹی میں پاک چین دوستی کے ماضی، حال اور مستقبل کے موضوع پر خطاب۔
दरियाए सिंध में गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज पर 6,25,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। सखर पर दरमियाने और कोटरी पर निचले दर्जे का सैलाब। लाड़काना और नौशहरों फेरोज के कच्चे के इलाके में जमींदारी बंद टूटने से मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। मुतासरा इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुतासरीन को खाने पीने की अशिया समेत जरूरी सामान की फराहमी। मॉनसून बारिशों का 11वां स्पेल कल से शुरू होगा। 16 से 19 सितंबर तक बेशतर अजला में शदीद बारिशों की पेशगोई। रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जेहलम, गुजरावाला, लाहौर, गुजरात और सियालकोट में बारिशें मुतवक्के। नारोवाल, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, उकाड़ा, साहिवाल, कुसूर, झंग, सरगोदा और मियांवाली में बारिशों का इम्कान। 18 और 19 सितंबर के दौरान रावलपिंडी, मरी, गलियात की नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। स्टेट बैंक का नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान। शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक की सदारत में मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। मुल्की और आलमी मौशी हालात का जायजा। अगस्त में महंगाई की शरह 3% रिकॉर्ड की गई। ज़र मुबादला के ज़खायर में भी बेहतरी आई है। स्टेट बैंक। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की कामयाब कार्रवाइयां। 13 और 14 सितंबर के दरमियान शब सिक्योरिटी फोर्सेज की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 31 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। लकी मरवत में 14 और बन्नू में फितनल हिंदुस्तान के 17 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दी के इफरीत के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के गैर मुतज़लज़ल अज़्म में पूरी कौम मुसल्लह अफ़वाज के शाना बशाना है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज की तारीफ। I, Makbul Ahmed Gondal, do hereby solemnly swear I will bear true faith and allegiance to Pakistan. ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान मकबूल अहमद गोंदल ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी ने उनसे हलफ लिया। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ऑडिटर जनरल ऑफिस और सुप्रीम कोर्ट के अफसरों की शिरकत। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हिदायत पर NDMA ने मजीद 100 टन इमदादी सामान गजा के लिए रवाना कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर से सामान रवाना किया। इमदाद पाकिस्तान की जानिब से गजा के अवाम के लिए पैगाम मोहब्बत है। पाकिस्तानियों के दिल फ़लस्तीनियों के साथ धड़कते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज। गाजा पर काबिज इजरायली फौज की बर्बरियत जारी। वहशियाना बमबारी में मजीद 53 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फजाइया के शिमाली गाजा में रिहायशी इमारतों और पनागाहों पर हमले। खान यूनस में इमदादी मरकज पर काबिज फौज की फायरिंग से 5 फलस्तीनी शहीद। हजारों फलस्तीनी इलाका छोड़ने पर मजबूर। सेहोनी हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 65,000 से तजावुज कर गई। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का सिलसिला जारी। कश्मीरी सियासी नजरबंदों को पुरअमन जदोजहद जारी रखने पर इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी जज्बा हुर्रियत को बदतरीन रियासती दहशतगर्दी के जरिए दबाने की कोशिश कर रही है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों समेत तमाम नजरबंदों की हालत इज़हार पर सख्त तशवीश का इजहार। एशिया कप में भारतीय खिलाड़ियों की घटिया हरकत। पाकिस्तान का भारतीय टीम और मैच रेफरी के नामुनासिब रवैये पर शदीद एहतजाज। कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर ICC में शिकायत दर्ज। मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को एशिया कप से फौरी तौर पर हटाया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ICC को खत। खेल में सियासत घसीटना उसकी रूह के मुनाफी है। मेरे लिए पाकिस्तान की इज्जत और उसकी साख से बढ़कर कुछ नहीं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी। पाक फौज के ज़रिए एहतमाम गिलगित बल्तिस्तान के जिला शिगर में पहली नेशनल सरफारंगा मैराथन का इनेकाद। 21 किलोमीटर के मुकाबले में 1000 से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की एथलीट्स की शिरकत। मजमूई तौर पर 40 लाख रुपए के इनामात तकसीम।
Mane skips around from Solan and goes the return. It's Mane. It's 1-0. Finally breached. और सऊदी प्रोफेशनल फुटबॉल लीग क्रिस्टियानो रोनाल्डो की टीम अल नसर ने अल खलूज को 2-0 से हरा दिया। पॉइंट्स टेबल पर अल नसर, अल खलीज और अल इत्तेहाद के 6-6 पॉइंट्स। गोल औसत की बुनियाद पर अल नसर पहले नंबर पर मौजूद। At home to Al Nassr last season. हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शेयर करेंगे एक ब्रेक के बाद। NAVTEC और प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम के तहत प्राइम मिनिस्टर्स यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बैच 3 का आगाज। हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर में अफरादी कुव्वत की तरक्की के लिए वजीर आजम का खुसूसी पैकेज। रेस्टोरेंट मैनेजर, फूड पैकेजिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, प्रोफेशनल कुक, ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रोग्राम मैनेजर और को-पैमाही समेत 13 मुफ्त कोर्सेज में दाखिलों का आगाज। माहिर असातिज़ा की ज़ेरे निगरानी तरबियत, रोजगार और कारोबार के रोशन इम्कानात। ऑनलाइन दरखास्त देने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025। कोर्सेज की तफसील और ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें। NAVTEC। महफूज पंजाब की बाइख्तियार खवातीन, रोशन कल और तरक्की और खुशहाली का यकीन। किसी खातून को हरासा करना मरियम नवाज शरीफ की रेड लाइन। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक की पासदारी के लिए पुरअज़्म। तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का क़याम। पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ़्फ़ुज़। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्विस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी। धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। ये है खवातीन के लिए महफूज और खुशियों भरा पंजाब। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ हैं अपनी मिसाल आप। हुकूमत पंजाब। एक सोच ने अंगड़ाई ली है, एक और कली मुस्काई है। मेरे घर में सारे जहान की खुशी सिमट आई है। बारिश की पहली बूंद की मानिंद मेरे दिल से एक आवाज आई है कि ये नन्हे कदम रुकेंगे नहीं, ये मासूम ख्वाहिशें मिटेंगी नहीं, ये काबिलियतें थमेंगी नहीं। क्योंकि मैं हूं हमेशा इनके साथ। मेरी दोनों बेटियां मेरी कुल कायनात और मेरा खानदान है मुकम्मल। महकमा सेहतो आबादी, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इंसानियत के खिलाफ जंगी जराइम पर इसराइल को कटहरे में लाने का मुतालबा करते हुए कहा है कि सिहोनी रियासत की अक़वाम मुत्तहिदा में रुकनीत मुअत्तल करने के हामी हैं। वज़ीर आज़म ने आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के लिए पाकिस्तान की हिमायत का इयादा करते हुए गजा में फौरी, गैर मशरूत और मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा किया। तफसील बताएंगे मोहम्मद मसर अब्बास। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने दोहा में होने वाले अरब इस्लामी हंगामी सरबराह इजलास में पाकिस्तान का 2 टोक और असूली मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। उन्होंने दोहा पर इसराइली हमले की शदीद अल्फाज में मुज़म्मत करते हुए कतर की क़यादत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि इसराइली जाहिरियत का मकसद अमन की कोशिशों को सबूताज करना था। सवाल है कि इन मज़मूम मकासद के साथ मुज़ाकराती अमल का ढोंग क्यों रचाया गया। Pakistan strongly condemns Israel's reckless and provocative attack on Doha. This was a flagrant violation of the sovereignty and territorial integrity of the state of Qatar. Israel's assault against Qatar is not an isolated incident.
It is yet another manifestation of its declared hegemonic ambitions. Even in wartime, the role of peace mediators is always deemed inviolable and held sacrosanct. They are the messengers of fragile hope. One is therefore compelled to question, why then this charade of negotiations? Was the return of hostages ever a priority for a country that has no respect or regard for human life? وزیر اعظم نے اسرائیلی دہشت گردی کے شکار نہتے فلسطینیوں کا مقدمہ پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ بربریت تمام حدیں پار کر چکی ہے. اسرائیل کے جارحانہ عزائم روکنے کے لیے ٹاسک فورس تشکیل دی جائے. انہوں نے کہا کہ ہم نے اجتماعی دانش سے اقدامات نہ کیے تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. Pakistan reiterates the following urgent and essential steps. Israel must be held accountable for its war crimes against humanity. Creation of an Arab Islamic task force to adopt effective measures to ward off Israeli expansionist designs. We reiterate the OIC's call to suspend Israel's membership of the United Nations. Fourth, member states should actively consider implementing other appropriate measures against Israel. The UN Security Council must urgently demand from Israel under Chapter 7 of the UN Charter an immediate, unconditional and permanent ceasefire, release of hostages and exchange of Palestinian prisoners. Sixth, guaranteed, sustained and secure humanitarian access to all civilians in need and the protection of aid workers, medical teams, journalists and UN personnel. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے دو ریاستی حل کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے غزہ میں فوری طور پر غیر مشروط جنگ بندی کی ضرورت پر زور دیا. While Gaza bleeds, the heart-wrenching cries of its innocent women and children echo through these halls. We can hear the frail voice of the 10-year-old boy Amir, who walked 12 kilometers barefooted for a few morsels of bread, only to be gunned down by Israeli soldiers along with 64,000 of his fellow countrymen. Israel's genocidal campaign has reduced Gaza to rubble and ruin. We have all condemned Israel's aggression. Above all, Excellencies, we must achieve a just, comprehensive and lasting two-state solution with creation of an independent state of Palestine with pre-1967 borders and Al-Quds Al-Sharif as its capital. Let history record this great moment when we, the leaders of the Arab Islamic world, have chosen unity, dignity and courage over silence and inaction. Otherwise, my brothers and sisters, may I submit in all humility, posterity will never forgive us. وزیر اعظم نے عرب اسلامی سربراہ ہنگامی اجلاس کے لیے امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے اہم کردار کو سراہتے ہوئے پاکستان کے مکمل تعاون کا یقین دلایا. محمد مظہر عباس، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. دوحہ میں عرب اسلامی سربراہی ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عالمی رہنماؤں نے قطر کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ اسرائیل کے توسیع پسندانہ عزائم عالمی امن کے لیے شدید خطرہ ہیں. مشرق وسطی میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے آزاد و خود مختار ریاست کا قیام ناگزیر ہے. تفصیل بتا رہے ہیں عمر فاروق. قطر کی میزبانی میں ہونے والے عرب اسلامی سربراہ ہنگامی اجلاس میں مسلمان ملکوں کی قیادت کی شرکت اس عزم کی عکاس تھی کہ اسرائیل کی دہشت گردی روکنے کے لیے اجتماعی دانش بروکار لانا وقت کی ضرورت ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، ترک صدر رجب طیب ایردوان، اردن کے شاہ عبداللہ دوئم، مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی، ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان، کویت کے ولی عہد شیخ صبا الخالد الاحمد المبارک، ملیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم،
ताजिक सदर इमाम अली रहमान, इराकी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शिया अल सुदानी और फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास समेत 50 से ज्यादा मुल्कों की क़ियादत इस अहम इजलास में शरीक थी। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी ने सरबराह इजलास में शरीक रहनुमाओं का खैर मकदम करते हुए कहा कि हमने बतौर सालिस खित्ते में अमन के लिए मुखलिसाना कोशिशें की हैं। इसराइल ने मुज़ाकराती अमल सबूताज करते हुए दोहा पर हमला किया। उन्होंने कहा कि ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए शदीद खतरा है। सियोनी हुकूमत इंसानियत के खिलाफ जराइम की मुर्तकिब हुई है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने मुसलमान मुल्कों की तरफ से कतर के साथ इज़ारे यकजहती को काबिल सताइश करार देते हुए कहा कि इसराइल को खुली जारहियत की रियायत नहीं दी जा सकती। मुसलमान मुल्कों को अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करते हुए आगे बढ़ना है। तुर्क सदर ने तजवीज़ दी कि OIC फ्रेमवर्क के तहत इसराइल को आलमी अदालत इंसाफ में लाने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली वज़ा की जाए। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोयम ने कहा कि कतर की सलामती को अपनी सलामती समझते हैं। इसराइल की बर्बरियत रोकने के लिए इज्तिमाई दानिश बरूकार लाते हुए इकदामात करना होंगे। मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी ने कहा कि इसराइल ने तमाम रेड लाइंस पार कर ली हैं। फलस्तीन में इंसानियत सिसक रही है। जंगी जराइम पर इसराइल को कोई इस्तिस्ना नहीं दिया जा सकता। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पिज़ेश्कियान और इराक के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शिया अल सुदानी ने कहा कि इसराइल की जानिब से बैनुल-अक़वामी कवानीन की सरियन खिलाफ वर्जी पर आलमी बरादरी की मानी खेज खामोशी अफसोसनाक है। दोहरा मेयार तर्क करना होगा। उन्होंने कहा कि सियोनी हुकूमत के इक़दामात हमारी इज्तिमाई सलामती के लिए खतरा है। फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने गजा में नस्लकुशी रोकने और फौरी इमदाद की फराहमी के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दामात का मुतालबा करते हुए कहा कि 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक फलस्तीनी रियासत का क़याम ही अमन का वाहिद रास्ता है। कुवैत के वलीअहद शेख सबा अल खालिद अल अहमद अल मुबारक, ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान, मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज़ो, लबनान, जबूती, मोरितानिया, सोमालिया और दूसरे मुल्कों के रहनुमाओं ने कहा कि गजा में 2 साल से जारी बर्बरियत आलमी बरादरी के ज़मीर पर सवालिया निशान है। इसराइल के हाथों खित्ते के मुल्कों की खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती की खिलाफ वर्जियाँ काबिल मुज़म्मत हैं। उन्होंने कहा कि तशद्दुद की बजाय बातचीत से मसाइल हल हो सकते हैं। इसराइल को रियासती दहशतगर्दी और जंगी जराइम पर कटहरे में लाना होगा। आलमी रहनुमाओं ने गजा में इंसानियत सोज मजालिम और भूख को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की शदीद मुजम्मत करते हुए कहा कि 69 फलस्तीनियों पर उनकी अपनी जमीन तंग कर दी गई है। उन्होंने बिला तात्तुल और फौरी इमदाद की फराहमी की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि आलमी बरादरी फौरी जंग बंदी के लिए इकदामात करे। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक। साथ रहिएगा। महफूज पंजाब की बाइख्तियार खवातीन, रोशन कल और तरक्की और खुशहाली का यकीन। किसी खातून को हरासा करना मरियम नवाज शरीफ की रेड लाइन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक की पासदारी के लिए पुरअज़्म। तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का क़याम। पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ़्फ़ुज़। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्विस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी। धी रानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। ये है खवातीन के लिए महफूज और खुशियों भरा पंजाब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ हैं अपनी मिसाल आप। हुकूमत पंजाब। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।
हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, आप बताओ। मैडम जस्ट क्विक 5 मिनट्स में आपको, ये हमारा रिवर चिनाब है जिसमें टोटल हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है दैट इज बिटवीन दीज टू रिवर। ये रिवर इंडस चल रहा है मैडम, और ये रिवर चिनाब है। इस वक्त हम सिर्फ चिनाब की बात करेंगे। चिनाब में हमें रिवर रिसीव होता है मैडम झांग डिस्ट्रिक्ट से। ये रंगपुर हमारा पॉइंट है, जहाँ से शुरू करके ये सारा मेंढर करता हुआ ये सरकी का पॉइंट है। यहाँ तक टोटल हमारा जो रिवर चिनाब है वो 212 किलोमीटर का है मैडम। 212 किलोमीटर में कंप्लीट हमारा बंद है। इसको हम डिफाइन करेंगे। 5 तक ये पॉइंट है मैडम। इसकी स्लाइड हमने ये अलहदा बनाई है जिस एरिया के ऊपर हम बात कर रहे हैं इस वक्त। यहाँ से लेकर जी यहाँ तक बंद है, कंप्लीट बंद है मैडम यहाँ तक। अच्छा, सिर्फ यहाँ पे 3 किलोमीटर का बंद नहीं था जिसने ये सारा इशू क्रिएट किया। क्यों नहीं था मैडम? यहाँ पे कभी भी फ्लड बाहर नहीं आया इरिगेशन के अपने। अब तो आया है ना जी अब आया मैडम, और उसी ने है सुहेब होगा। इरिगेशन का बंद है काजिम। चलो काजिम और सुहेब दोनों आ जाओ। जी मैडम, ये बंद जो है ना ये बनाना चाहिए। हमें वेट नहीं करना चाहिए कि खुदा न खास्ता दोबारा पानी आए। ये दोबारा आएगा भी प्रोटेक्शन भी है। अब ये मैडम ये हमारी टोटल अलीपुर तहसील है। देखिए इसको यहाँ डिफाइन किया मैडम इस स्लाइड के ऊपर। अब बेसिकली ये हेड पांचनाद है। हेड पांचनाद से जब पानी आया है रिवर चिनाब के अंदर, तो ये जो ब्राउन मैडम कलर है ये सारा हमारा कंटिन्यूअस बंद चल रहा है अलोंग इंडस एंड अलोंग चिनाब। बट ये पॉइंट था 3 किलोमीटर का जहाँ कभी पानी बाहर नहीं निकला, और इस दफा क्योंकि वेलोसिटी कम थी, हाइट ज्यादा थी, तो पानी यहाँ से बाहर निकला। सबसे पहली आबादी जो हमारी हिट हुई है वो कहीं से बंद टूटा है? नेवर मैडम। ऊपर 212 किलोमीटर में से अभी भी कहीं यहाँ पे नीचे आके मैडम एक बंद का पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। जब पानी यहाँ से आया है और इधर से रिवर साथ चल रहा था, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स थे जहाँ पे बंद नहीं था। यहाँ पे भी नहीं था, और 2 पॉइंट्स में 1000 फीट में यहाँ पे भी नहीं था। वहाँ पे हमने विजिट करके पार्लियामेंटेरियंस के साथ ओवरनाइट यहाँ पे काम शुरू किया, और 10 दिन में ये जो 2 गैप्स थे इनको फिल किया। वो फिल हो गए, मगर जब पानी इधर से भी चढ़ा और यहाँ से भी आ गया तो उसने सीपेज की, क्योंकि वो बांध की कंपैक्शन उस तरह से नहीं थी, नया बना हुआ था, तो वो पानी फिर यहाँ से उसने इनंडेट किया हमारे सीपपुर को। मैडम ये जो बात है ना, ये कह रहे हैं कि हुआ ये 10-15 डेज पहले बता दिया गया था कि ये गिरा नहीं, तो इसकी फोर्टिफिकेशन नहीं हुई इस जगह की। इन्होंने कोशिश की लेटर कोशिश की, तो भट्टी गिरी थी, सस्टेन द प्रेशर कहीं ना कहीं तो हुई है ना। और अभी ये जो आपको मैप दिखा रहे हैं, इस पूरे मैप में जो ग्रीन एरियाज है ना मैडम, वो रेड हो चुकी है। इट्स ऑल ये ग्रीन भी नहीं है। ये मैडम यहाँ से जब वाटर नीचे को चला है तो नेचुरली इसने फिर ये वाला रास्ता इख्तियार किया, और ये इनंडेट करता आया इस सारे एरिया को, और यहाँ पे आके इसने पॉन्डिंग की। अभी कुंदाई की क्या सिचुएशन? कुंदाई हम कल गए थे ना, ऑल इनंडेट सारा, ये अब कुछ भी ग्रीन नहीं है, इट्स ऑल रेड। और अब ये जो आप बंद देख रही है ना, ये पूरे ने इसको बचाया होता है, अदरवाइज सैलाब आता है। और इस पूरे पे अब आबादी है। ये जो पूरा ब्राउन एरिया बंद का देख रही हैं, और ये शहबाज साहब ने, ये मियां साहब ने 1988 में शुरू किया था इसका प्रोसेस, और ये शहबाज साहब ने इसको कंप्लीट, और अब जो गराजेस भी बने हैं वो भी हमारी गवर्नमेंट बने। अब जो एरिया में देख रहे हैं टेंट सिटी बनी है, तो ये अब आज हम जा रहे हैं इस एरिया में, और ये अब मसला ये कि जो ये वाला एरिया ना, यहाँ बोट भी नहीं जा सकता, ये बिल्कुल यहाँ बेड़ा भी नहीं चल सक रहा, और इस जगह पे भी बेड़ा चलना मुश्किल हो गया। पानी अब रिसीव कर रहा है, तो डेप्थ ऑफ वाटर नहीं है। तो अब वो कोशिश हम कर रहे हैं आमिर भाई के साथ कि हमें कोई तरीका बताएं कि जहाँ किधर हम पहुँचा सकते हैं चीज़ें, मगर ये चीज़ें जो है यहाँ पहुँच, और सी जहाँ नहीं पहुँच रही वहाँ हेली से पहुँचना, हेली से पहुँचा तो सकते हैं, लेकिन हेली में भी ना हमने जिस तरह जलालपुर में कोशिश की थी ना, हेली इज़ अ वेट इशू, और वो फेंकता है, तो टेंट नहीं फेंक सकना, टेंट रखे जा सकते हैं, नदी में ना फेंक। और जो आपके वो जो है ड्रोन्स वेट कैरिंग ड्रोन्स, वो भी हमने टेस्ट किया था, तो मैं आपको बताऊंगी कि वो एक सर्टन हाइट पे जाते हैं देन दे लैंड। एक और चीज़ वो जो बताएं, वो सीतपुर कहाँ है? सीतपुर, ये मैडम यहाँ हम गए थे। अब ये ना एक सीतपुर जो जगह, ये कंप्लीट आइलैंड बना, हाँ जी, इधर हम गए थे जहाँ उस दिन वो लोगों को राशन और आटा दिया, और ये जो आप देखिए ना, ये थोड़ा सा बचा हुआ, ये खैर प्रसादात, और यहाँ एक छोटी सी लाइन बची हुई जो पानी में नहीं है, बाकी सब इट्स ऑल। ये सारा एरिया मैडम जो है वाटर में है। यहाँ से लोगों को निकाल लिया। अभी तो खुद मुझे ये बताओ कि अभी यहाँ से कहाँ से पानी रिसीव कर रहे हैं? मैडम यहाँ पे जब पानी आया है तो ये 3 कट यहाँ डेवलप किए गए हैं, उसकी वजह से ये पानी निकला है। अब पानी पीछे 3,07,000 पे चला गया, तो ये जो दोनों कट्स हैं ये भी पानी को अब वापस दरिया में डाल दें। और इंडस का फ्लो इस वक्त कैसा है? इंडस का फ्लो डाउन है मैडम, उसको हेड में मिल रहा है, तो और सीएम यहाँ जब गए ना, तो ये ब्रीच है जो मैंने किया, तो हम यहाँ तक जा सके, फिर यहाँ से आगे अब
जो है ना पानी कम है जिसकी वजह से सब मैंने देखा है ऊपर से रिसीव कर रहा था, लेकिन अभी भी इनअंडेटेड है, पूरे गांव कटे हुए हैं चारों तरफ। मैडम पानी रिसीव किया तो हमारी यहाँ पे जो कनेक्टिविटी रोड थी वो अल्हम्दुलिल्लाह मैकेनिकल डिवीजन ने शुरू कर दी। हमारी यहाँ पे 3 आए थे कट्स, जिसमें 2 वो तो मैडम अभी टाइम लगेगा, अभी राशन दिए बांध जो आपने ग्राउंड एरिया सुंदरी सीट के लिए सबको राशन दिया, और वहाँ भी 2600 हमने राशन दिए, लेकिन 5000 आ जाएगा। जो आप पूरा ब्राउन देखिए ना एरिया, वहाँ किसी को टेंट किसी को सिर्फ कुंदाई वाला टेंट हमने कर बस वो भी प्रोसेस में थे। तो अब आए हैं ना ये आज आए हैं। नहीं हमारे पास टेंट्स की कमी नहीं है, टेंट्स भी है, राशन भी है। राशन तो सीएस कल 29 मुझे पता है, आपने डायरेक्शन दिया तो भिजवा दिया, वो प्रोसेस अब शुरू है। ठीक हो? इसी कैंप में हो सारे? खाना मिल रहा है और बच्चों का दूध मिलता है? कोई बात नहीं। रोटी किधर है? बाकी सारे नाम लेकर आओ ना, वो कैसे खाएंगे? लाओ सारी रोटियां रखें। सलाम करा दिल करे। क्या नाम है? मोहम्मद तैयब। इतना अच्छा नाम है। ये लो ये लो हाँ इधर भी दे रही हूँ। एक प्लेट और दे दो भाई। क्या हाल है? ठीक है। हेलो क्या हाल है? सो स्वीट। लाओ जी। अच्छा सुनो, आपने फिक्र नहीं करी, पानी उतरेगा ना आपका घर बना के देंगे, ठीक है? ये वादा हो गया, बस फिक्र नहीं करनी। चलो खाना खाओ, ठंडा हो रहा है ना, खाना खाओ। बेटे और सारे कनु खने नहीं इतनी सिक्के क्या होता है? वो क्या होता है? क्या होता है? कितने बच्चे हैं? बच्चा हो तो ना भांजे भी और ये मेरी अनीशा भी ना रही 9 साल की। आपका कौन होता है? वो भी ऐसी कौन? मेरी अनीशा 9 साल की, कोई नहीं नजर बेटा कितनी उम्र थी उसकी? आपका नाम? अल्लाह ताला आपको खबर आप कहाँ से? ये रिश्तेदारों को ना देना चाहिए आपके लिए। इतनी बात है।
सब बच्चों को मिलेगा, इसलिए आराम से बैठेंगे, ठीक है? जब आपको कोई कहता है लव यू तो आप क्या कहते हैं? छोड़ दो हाथ से, चलो गुड। अच्छा मुझे नहीं मारना, ठीक है? आराम से भी नहीं मारना। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का मुजफ्फरगढ़ की सैलाब मुतासरा तहसील अलीपुर का दौरा। वज़ीर आला पंजाब को सैलाब के दौरान फराहम की जाने वाली इमदाद के हवाले से और लोगों को रेस्क्यू करने के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने इस मौके पर रिलीफ कैंप में मुकीम लोगों से मुलाकात भी की। नाज़रीन, दोहा में अरब इस्लामी हंगामी सरबराह इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात और कतर पर इसराइली जाहरियत के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। नायब वज़ीर आज़म सेनेटर मोहम्मद इसहाक़ डार और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने इसराइली इक़दामात की शदीद मज़म्मत करते हुए मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशों को सबूताज करने की दानिस्ता साजिश करार दिया। उन्होंने इस नाजुक वक्त में मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए मोहम्मद बिन सलमान की जुर्रतमंदाना और दानिशमंदाना क़यादत को सराहते हुए तमाम आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि दोहा में हंगामी अरब इस्लामी सरबराह इजलास का इनेकार ये वाज़ेह पैगाम है कि इलाक़ाई अमन और सलामती के लिए ख़तरा बनने वाले इसराइल के गैर कानूनी और जारहाना इक़दामात के खिलाफ दुनिया भर के मुसलमान यकज़बान हैं। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीख़ी बरादराना ताल्लुकात मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा करते हुए हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की हिमायत पर सऊदी वली अहद का शुक्रिया अदा किया। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि वो रवां हफ्ते के आखिर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान के रियाज के दौरे के मुंतज़िर हैं। ये दौरा दो तरफ़ा ताल्लुकात के साथ इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर जामे तबादला ख्याल का हम मौका फ़राहम करेगा। वज़ीर आज़म ने ख़ादिम हरमैन शरीफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ के दिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कतर के साथ इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान की फ़ाल सिफारती कोशिशों की तारीफ़ की। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अरब इस्लामी ममालिक के हंगामी इजलास के मौके पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और आलमी रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार और पुरतपाक मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान, सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद, फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद असानी, ताजिकिस्तान और मिस्र के सदूर से खुशगवार मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास से बाहमी एहतराम के नाते बगलगीर हुए। हंगामी सरबराही इजलास इसराइल के कतर पर हमले की मजम्मत और खत्ते पर असरात पर तफसीली तबादला ख्याल के लिए तलब किया गया था। इस इजलास में 50 से ज़ायद रुकन ममालिक के सरबराहान शरीक हैं। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। नेवटेक और प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम के तहत प्राइम मिनिस्टर्स यूथ स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बैच 3 का आगाज। हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर में अफरादी कुव्वत की तरक्की के लिए वजीर आजम का खुसूसी पैकेज। रेस्टोरेंट मैनेजर, फूड पैकेजिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल, प्रोफेशनल कुक, ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रोग्राम मैनेजर और को पैमाही समेत 13 मुफ्त कोर्सेज में दाखिलों का आगाज। माहिर असातिज़ा की ज़ेरे निगरानी तरबियत, रोजगार और कारोबार के रोशन इम्कानात। ऑनलाइन दरखास्त देने की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025। कोर्सेज की तफसील और ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें। नेवटेक। महफूज पंजाब की बाइख्तियार खवातीन, रोशन कल और तरक्की और खुशहाली का यकीन। किसी खातून को हरासा करना मरियम नवाज शरीफ की रेड लाइन है।
वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ खवातीन का तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक की पासदारी के लिए पुरअज़्म। तारीख में पहली बार वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का क़याम। पिंक बटन से फौरी पुलिस हेल्प का हुसूल। वुमेन सेफ्टी ऐप, पुलिस प्रोटेक्शन ऐप, हेल्पलाइन 1043, 24 घंटे 7 दिन फाल। जेंडर बेस्ड वायलेंस के ट्रैकिंग सिस्टम का जल्द आगाज। जाए मुलाजमत पर हिरासगी के खिलाफ कानूनी तहफ़्फ़ुज़। खवातीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्विस अफराद को 2 साल कैद और 5 लाख रुपए तक जुर्माना। कम उम्री की शादी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई। चीफ मिनिस्टर डिजिटल स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम बराए दही खवातीन का इजरा। वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स और डे केयर सेंटर्स की फराहमी। धीरानी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम और इलेक्ट्रिक बाइक स्कीम में खवातीन के लिए खसूसी कोटा। ये है खवातीन के लिए महफूज और खुशियों भरा पंजाब। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ हैं अपनी मिसाल आप। हुकूमत पंजाब। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फिदा ने कतर और खित्ते के दीगर ममालिक पर इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत की है। दोनों वज़ीर ख़ारजा के माबैन मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने मुस्लिम उम्मा के इज्तिमाई किरदार के लिए OIC और अरब लीग की अहमियत पर जोर दिया और फ़लस्तीनी अवाम की जद्दोजहद की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा किया। दोनों रहनुमाओं ने अरब इस्लामी सरबराही इजलास के इनेकाद का खैर मकदम भी किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने शंघाई इलेक्ट्रिक को पाकिस्तान के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम में सरमायाकारी की दावत दी है। शंघाई इलेक्ट्रिक के चेयरमैन वूली से मुलाकात में सदर ममलिकत ने कहा कि अगर कोई ज़ेर-ए-इल्तिवा मसाइल हुए तो उन्हें दोस्ताना और बाहमी ताउन के जज्बे के तहत हल किया जाएगा। उन्होंने पाकिस्तान की तवानाई ज़रूरियात पूरी करने में शंघाई इलेक्ट्रिक के किरदार को सराहते हुए कहा कि शंघाई इलेक्ट्रिक ने रोज़गार के मौके, समाजी और माशी तरक्की में अहम किरदार अदा किया। सदर ममलिकत ने यकीन दिलाया कि पाकिस्तानी हुकूमत चीनी कारकुनों के लिए महफूज और साजगार माहौल यकीनी बनाने के लिए हिफाजती इक़दामात को मज़ीद मजबूत करेगी। इस मौके पर शंघाई इलेक्ट्रिक के CEO ने पाकिस्तान में अपने मुलाजमीन के लिए फ़राहम करदा सिक्योरिटी इंतजामात पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। सदर ममलिकत को शंघाई इलेक्ट्रिक के पाकिस्तान में जारी मनसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर थर में कोयला गैसिफिकेशन प्लांट के क़याम के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत भी हुए। ये थर कोयले पर मबनी पहला कोयला गैसिफिकेशन और फर्टिलाइज़र मनसूबा होगा जो तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के साथ ज़राई शोबे को भी सहारा फराहम करेगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने शंघाई में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के पहले नेशनल कांग्रेस मेमोरियल का दौरा किया, जहां उन्हें इस तारीखी इमारत के बारे में ब्रीफिंग दी गई। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी सदर मुमलिकत के हमरा थे। यह मेमोरियल कौमी सकाफती वर्सा और शंघाई का नुमाया तारीखी मुकाम तस्लीम किया जाता है। सदर मुमलिकत ने तारीखी वर्से के तहफ़्फ़ुज़ को सराहा। उन्होंने मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद करते हुए लिखा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की यादगार का दौरा मेरे लिए एजाज़ की बात है। पाकिस्तान चीन ताल्लुकात का तस्करा करते हुए सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दोनों ममालिक की शराकत दारी और आयरन ब्रदर्स की सदाबहार दोस्ती और हर शोबे में ताउन मजबूत से मजबूत तर होगा। शंघाई में सदर आसिफ अली जरदारी और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने चाइना अफ्रीका चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नायब सदर मिस हाउ ने मुलाकात की और पाकिस्तान के साथ इसी नौयत का चैम्बर कायम करने की ख्वाहिश का इजहार किया। सदर ममलिकत और खातून अव्वल ने मिस हाउ की तजवीज़ को सराहते हुए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि ऐसा चैम्बर पाक चीन इक़्तिसादी ताउन, तिजारत और सरमायाकारी के लिए नए रास्ते खोलेगा। पाकिस्तान चीन दोस्ती की दुनिया भर में कहीं मिसाल नहीं मिलती। दोनों मुल्कों की अजीम दोस्ती को आने वाली नस्लों तक पहुंचाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने फौदान यूनिवर्सिटी में पाक चीन दोस्ती के माजी, हाल और मुस्तकबिल के मौजू पर खिताब किया। तफसील शेयर कर रहे हैं हुसैन रजा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने चीन की 120 साल कदीम यूनिवर्सिटी फुदान का दौरा किया। फुदान यूनिवर्सिटी में पाक चीन दोस्ती के माजी, हाल और मुस्तकबिल के मौजू पर खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि CPEC पाकिस्तान चीन दोस्ती का अमली सबूत है और इलाकाई तरक्की और खुशहाली में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। Internationally, for the Pakistan-China relationship, he laid the foundations for the China-Pakistan economic corridor, being one of the first countries to engage in the visionary One Belt, One Road
initiative. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ پاکستان اور چین کے تعلقات مضبوط بنیادوں پر استوار ہیں اور دونوں ملکوں نے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا ہے. We have taken this relationship forward and encourage you to now start playing our role in taking this relationship to the next generation and to the next level. بعد ازاں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے طلباء سے ملاقات کی اور ان کے سوالات کے جوابات دیے. اس سے قبل بلاول بھٹو زرداری کے فدان یونیورسٹی پہنچنے پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا. حسین رضا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. ناظرین، سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں دو مختلف آپریشنز میں 31 بھارتی حمایت یافتہ خارجی دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا ہے. ISPR کے مطابق خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز نے 13 اور 14 ستمبر کے درمیانی شب بھارتی حمایت یافتہ خارجی دہشت گردوں کی موجودگی کی مصدقہ خفیہ اطلاعات پر لکی مروت اور بنو میں کامیاب آپریشنز کیے، جن میں لکی مروت میں 14 جبکہ بنو میں 17 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد مارے گئے. سیکیورٹی فورسز ملک سے بھارتی حمایت یافتہ خارجی دہشت گردوں کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے لکی مروت اور بنو میں فتنہ الخارج کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کے افسران اور اہلکاروں کی پذیرائی کی ہے. آپریشنز کے دوران 31 خارجیوں کو جہنم رسید کرنے پر سیکیورٹی فورسز کے افسران اور اہلکاروں کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی تعریف کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کے ملک سے مکمل خاتمے تک اس کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے. انہوں نے کہا کہ عرض وطن کے تحفظ کے غیر متزلزل عزم میں پوری قوم اپنی افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. کل جماعتی حریت کانفرنس نے حریت رہنما اور کارکنوں سمیت تمام کشمیری نظر بندوں کی حالت اظہار پر سخت تشویش کا اظہار کیا ہے. KMS کے مطابق حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر سے ایک بیان میں کہا ہے کہ کشمیری سیاسی نظر بندوں کو تنازع کشمیر کے حل کے لیے پرام جدوجہد جاری رکھنے پر انتقامی کارروائیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ BJP حکومت کشمیریوں کے جذبہ حریت کو بدترین ریاستی دہشت گردی کے ذریعے دبانے کی کوشش کر رہی ہے. حریت ترجمان نے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سے اپیل کی کہ وہ کشمیری نظر بندوں کی رہائی اور تنازع کشمیر کے حل کے لیے بھارت پر دباؤ بڑھائیں. جمہوریت کے عالمی دن کے موقع پر KMS کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے دعویدار بھارت نے مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کے تمام بنیادی حقوق سلب کر رکھے ہیں. بھارت نے فوجی طاقت کے بل پر کشمیریوں کو ان کے حق خود ارادیت سے محروم کر کے خود کو ایک جعلی جمہوریت ثابت کیا ہے. کشمیریوں کی امنگوں کو دبانے سے جمہوری اقدار کے بھارت کے کھوکھلے دعوے بے نقاب ہوتے ہیں. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کشمیری عوام کو ان کے تمام بنیادی حق سے محروم رکھا جا رہا ہے اور جو بھی بھارتی قبضے کے خلاف آواز بلند کرتا ہے اسے جیلوں میں قید کر دیا جاتا ہے. قابض انتظامیہ نے ڈوڈا، کشتواڑ اور رامبن اضلاع میں 300 سے زیادہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو بلاک کر دیا ہے. ان اکاؤنٹ سے رکن اسمبلی معراج ملک کی گرفتاری کے بعد بھارتی پولیس کی بربریت کو اجاگر اور زمینی حقائق کو بے نقاب کیا جا رہا تھا. دوسری جانب سری نگر جموں ہائی وے پر پھلوں سے لدے ٹرکوں کی نقل و حرکت کو یقینی بنانے میں قابض حکام کی ناکامی کے خلاف وادی کشمیر کی تمام فروٹ منڈیوں میں آج مکمل ہڑتال کی گئی. ہڑتال کے باعث سوپور، ہندواڑہ، شوپیاں، کولگام اور اسلام آباد سمیت تمام منڈیوں میں کاروبار مفلوج ہو کر رہ گیا. پھل کاشتکاروں نے کہا کہ ان کے پھل ہائی وے پر پھنسے ٹرکوں میں خراب ہو رہے ہیں جو ان کی سال بھر کی محنت ہے اور قابض انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ پھلوں سے لدے ٹرکوں کو جان بوجھ کر روکا جا رہا ہے. کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق نے کاشتکاروں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قابض حکام کی بے حسی شرمناک ہے. آڈیٹر جنرل آف پاکستان مقبول احمد گوندل نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا. سپریم کورٹ اسلام آباد میں ہونے والی حلف برداری کی تقریب میں چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی نے ان سے حلف لیا. I, Maqbool Ahmed Gondal, do hereby solemnly swear I will bear true faith and allegiance to Pakistan. I will discharge my duties and perform my functions honestly, faithfully, in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. حلف برداری کی تقریب میں سپریم کورٹ کے ججز، آڈیٹر جنرل آفس اور سپریم کورٹ کے افسران نے شرکت کی.
नाज़रीन, खेल में खुश आमदीद। एशिया कप में भारतीय खिलाड़ियों और मैच रेफरी के नामुनासिब रवैये पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शदीद एहतजाज करते हुए ICC को खत लिख दिया। PCB ने सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए मुतालबा किया है कि मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को एशिया कप से फौरी तौर पर हटाया जाए। तफसील जानिए ज़ीशान क़य्यूम से। भारत खेल में सियासत घसीटने से बाज न आया। मार्का हक में अपनी तजलील का बदला खेल के मैदान में निकालने की शर्मनाक कोशिशें करने लगा। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत के मैच के टॉस के वक्त मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा से कहा कि टॉस के मौके पर हैंडशेक नहीं होगा, जो कि क्रिकेट में एक आम रिवायत है। मैच खत्म हुआ तो भारतीय टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ा दी और पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खुले दिल के साथ भारतीय खिलाड़ियों से हैंडशेक के लिए तैयार थे, लेकिन पूरी भारतीय टीम हठधर्मी का मुजाहिरा करते हुए ड्रेसिंग रूम लौट गई। भारतीय टीम और मैच रेफरी के नामुनासिब रवैये पर पाकिस्तानी टीम मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। टीम मैनेजर का कहना था कि भारतीय खिलाड़ियों का हाथ न मिलाना स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा ने भी भारतीय रवैये के खिलाफ इख्तितामी तकरीब में एहतजाजन शिरकत नहीं की। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव ने इख्तितामी तकरीब को सियासी तकरीब बनाते हुए खेल पर बात करने के बजाय सियासी और गैर जरूरी गुफ्तगू की, जो कवानीन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। बाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए पाकिस्तानी हेड कोच माइक हैसन ने कहा कि हम मैच के इख्तिताम पर हाथ मिलाने के लिए तैयार थे, लेकिन हमारे हरीफ पहले ही ड्रेसिंग रूम जा चुके थे। भारतीय टीम ने जो हरकत की उस पर पाकिस्तानी रद्द अमल फितरी था। भारतीय क्रिकेट टीम की गिरी हुई हरकत पर सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी का भी रद्द अमल सामने आ गया। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में मोहसिन नकवी ने कहा कि स्पोर्ट्समैनशिप की खिलाफ वर्जी इंतहाई मायूस कुन है। खेल में सियासत घसीटना असल रूह के मुनाफी है। चेयरमैन PCB ने कहा कि मैच रेफरी के नामुनासिब रवैये पर ICC को खत लिखकर शिकायत दर्ज करा दी गई है। मैच रेफरी ने अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाया, ICC कोड ऑफ कंडक्ट और स्पिरिट ऑफ गेम की खिलाफ वर्जी की है। PCB ने मैच रेफरी को एशिया कप से फौरी तौर पर हटाने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए पाकिस्तान की इज्जत और साख से बढ़कर कुछ नहीं। ज़ीशान क़य्यूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमे मौसमियात का कहना है कि आंधी झक्कड़ चलने, जालाबारी और गरज चमक के बायस रोज़मर्रा के मामूलात मुतासिर होने, कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचने का अंदेशा है। मूसलाधार बारिश के बायस खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गलियात और कश्मीर में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। मुसाफिरों और सयाह सफ़र के दौरान मुहतात रहें और मौसमी हालात के मुताबिक सफ़र का इंतज़ाम करें। शुक्रिया कदीर आपका। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा हुआ मुकम्मल। हमें हमारी टीम की हमरा इजाज़त दीजिए। कुछ ही देर में आपको ज्वाइन करेंगे हेडलाइंस के साथ। आप हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया।